So एक क्वेश्चन लिखें आप, write the regular expression. Write the regular expression over alphabet A comma B over the alphabet A comma B for the set of strings with even number of A's followed by odd number of B's even number of A's followed by odd number of B's that is for the language. We have to write the regular expression for the language of those strings of A's and B's in which we have the string contain first start with an even number of A's and then followed by odd number of B's. Very easy. इधर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करें. सुमेरा ने होस्ट की है मीटिंग. जी सर करती. व्हाइट बोर्ड सर. जी जी. नहीं आपने जो है वो अटेंडीज का जो है स्क्रीन शेयर डिसेबल किया हुआ है ना. सर एक सेकंड. आप पार्टिसिपेंट को अलाउ कर देना स्क्रीन शेयरिंग या सिर्फ मुझे अलाउ कर दें. ओके सर. ऑप्शंस. अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट. यस सर. मेरी स्क्रीन लोड हो रही है, अभी तक विजिबल हुई नहीं मैंने कहा आप लोगों ने सोची जब तक स्क्रीन तो लोड हो रही है. ए बी ए पहले एक बनाया जैसे इवन नंबर है तो ए और ऑड में बी. नहीं but we have to write the generalized expression for the infinite number of strings which contain the even number of A's and followed by odd number of B's. Bracket B. Wait. Bracket open. Double A. Bracket Double close. A. Bracket close. Static. And then triple B. और फिर triple B. PBB. Then triple B. जी सर. No, ये किसने कहा कि सिर्फ 3 B's आएंगे? Odd number of B's आएंगे ना? वो जब ब्रैकेट में बी लिखने के बाद प्लस. अच्छा सॉरी. 1 ब्रैकेट एक और ब्रैकेट के अंदर दोबारा हम 1 लिखेंगे, फिर स्लैश लगा ब्रैकेट दोबारा रिपीट करके उस पे स्टैटिक अगर लगाएंगे तो हो गए even number of A's and odd number followed by odd number of B's. जी Right? जी सर यही. You can write in this way that A the power. सर power 2n and b to the power 2m plus 1. Now we defined n is greater than equal to 0. Bracket star and double B bracket star then B. In both ways the representation same. Right?
नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, लिखें, sir. राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन, write the regular expression for the language. Write the regular expression for the language equal to, belongs to 0, 1 star, where W has no pair of consecutive zeros. Language is belongs to the word which contain the alphabet 0, 1, where the string, the word यानी W has no pair of consecutive zeros. के आपके पास किसी भी string में no pair of consecutive zeros, यानी दो जीरो एक साथ नहीं आ सकते. ब्रैकेट के अंदर 1 + 0 1 0 और स्टेरिक अगर लगा दें, ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दूं? 1 + 0 1 0 और स्टेरिक होल लगा 1 दें. + 0 1 आगे 0 क्या लिखूं? 1 0 और होल ब्रैकेट पे स्टेरिक. कंसेक्यूटिव जीरो सर मेरा ख्याल है कि कॉन्जिक्यूटिव जीरो तो नहीं बन रहे. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस के क्या इससे सिर्फ जीरो पास हो रहा है? नहीं, सिर्फ अच्छा, 0 पास. क्या इससे 0 1 पास हो रहा है? क्योंकि 0 0 1 भी तो एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं है. सर 1 स्टेरिक 0 1 1 स्टेरिक 0. अगर मैं इसको यूं लिखूं 1 + 0 1 star and then 0, क्या ख्याल? यस सर, 1 भी पास हो सकता है, 0 भी पास हो सकता है इसमें. और जो आपने बनाई थी वो वाली बिल्कुल आ कंडीशन भी. यस सर. Okay, next question लिखिए, write the regular expression for the language. Write the regular expression for the language. Write the regular expression for the language. A to the power n, b to the power m, where n is greater than equal to 4 or m is less than equal to 3. We have to write the language contains a set of strings such that every string start with at least 4 A's. So every string start with, यानी इस expression का क्या मतलब है कि जो हमने लिखी है कि जो language है which contains the strings of A's and B's, but such that every string that start with at least 4 A's, यानी start में कम से कम at most 3 B's, because m is less than equal to 3. Clear? बताएं आरी क्या होगी? सर ए की पावर तो 4, हाँ ए की पावर तो 4 आ ही जाएगी और फिर ए से ए स्टेरिक से उसे मल्टीप्लाई कर दें. अच्छा, तो ए वाला एरिया तो जी ठीक है, यहाँ तक ठीक है जी. सही है. और
फिर मेरा ख्याल है कि ब्रैकेट में हम b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब कर लें तो बेहतर होगा शायद, क्योंकि इससे हमें एटलीस्ट 3b चाहिए ना एंड में। एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट। तो बी नल हो सकता है, बी सिंगल आ सकता है, बी डबल आ सकता है, और बी ट्रिपल आ सकता है। ये हो गया एट मोस्ट। इस पे हम स्टार या प्लस नहीं लगा सकते इस ब्रैकेट पे, क्योंकि हमें एट मोस्ट कहा है, एट मोस्ट 3 बीज, यानी 3 बीज से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक ठीक है ना? क्लियर? जी सर। रब कर दूं? तो सर इसमें बी इसी तरीके से लिखा जाएगा? जी बिल्कुल, बी इसी तरह से लिखा जाएगा। सर इसमें ए वाली कंडीशन मतलब ए वाली कंडीशन ये कह रहा है कि मतलब लेस देन मतलब ग्रेटर देन 4 हो। ए जो है वो एटलीस्ट जो है वो आपके पास 4 होने चाहिए और एट मोस्ट इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा A4 कॉन्कैटिनेट किया ए स्टार के साथ, और बाकी बी कह रहा है कि दैट फॉलोड बाय बी, बट बी नॉट मोर देन 3, एट मोस्ट 3 होने चाहिए। इसका मतलब बी नल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी बी 1 टाइम हो सकता है, बी डबल टाइम और बी ट्रिपल टाइम। यानी यहां से हमें ए मिलेगा और यहाँ से आपके पास कोई एक भी हमें उसके साथ कॉन्कैटिनेटर होगा, या तो ये आएगा और या फिर ये आएगा, या ये आएगा, या फिर ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। L equal to a to the power n, b to the power m, where n plus m is even. A to the power n, b to the power m, where n plus m is even. यानी a और b कैसे स्ट्रिंग जिसमें के अगर हम a की काउंटिंग और b की काउंटिंग को सम अप करें तो दैट शुड बी इवन। सर इसमें तो ये होगा कि डबल ए ब्रैकेट के ऊपर स्टेरिक ए कर दें और डबल बी स्टेरिक के ऊपर बी कर दें, क्योंकि अच्छा, इवन नहीं होगा ना, दो है। ये सही है सर? अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको डबल ए स्टार जी, और हम और डबल डबल बी बी, स्टार, तो एटलीस्ट ये इवन तो हैं और फिर मल्टीपल होते रहेंगे तो फिर वो इवन नंबर में ही अच्छा जनरेशन होगी, भले से एक नल भी हो। लेकिन अच्छा इसमें एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी ना? अब अगर मैं इसमें आपसे ये कहूं कि फॉर एग्जांपल सर ट्रिपल ए और 5 बार बी। हमारे पास अगर ट्रिपल ए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिपल ए आ रहा है और लेट्स सपोज ट्रिपल बी आ रहा है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यानी ए भी 3 है, बी भी 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया, 6 इवन है। यानी ट्रिपल ए ट्रिपल बी वैलिड स्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, लेकिन वो हमारी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से पास नहीं हो रहा। अच्छा अब अगर गौर करें तो n + m जो है वो इवन दो केसेस में हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि जब n और m दोनों इवन हो, और एक केस वो हो सकता है जब n और m दोनों ऑड हो। n + m जो है वो दो केसेस में इवन हो सकता है, when n and m are both even, जिसकी कंडीशन आपने बना दी। दूसरी कंडीशन ये कि जब दोनों n और m जो है वो ऑड होंगे तब भी दोनों का सम इवन होगा। तो इसको अगर हम सर ब्रैकेट जो है ए से मल्टीप्लाई करते हैं ए वाले ब्रैकेट को और बी
वाले को b से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑड की बन जाएगी कंडीशन पे। हाँ, तो हमें दोनों कंडीशन को लेके चलना होगा। हमें लाइक डबल ए स्टार डबल बी स्टार प्लस ए then b, right? Clear? जी सर। ठीक है सर। ये वाली कंडीशन वो आ गई जो अभी आपने डिस्कस की थी कि जिसमें n और m दोनों इवन हो गए, और ये वाली कंडीशन वो आ गई जिसमें n और सर m आवाज ऑड नहीं हो आ रही गए। है आपकी। बोथ जी, हेलो। ठीक है सर, के समझ में आ गया। जी सर जी। सर अगर ये जीरो m जीरो हो गया और आवाज आ रही है? n इवन हो गया या n, सर एक क्वेश्चन था। हेलो जी, क्या कह रहे थे आप? n जीरो हो गया? सर इसमें एक मतलब ये क्वेश्चन था कि अगर इनमें से कोई भी एक जीरो और दूसरा इवन हो तब भी जो है वो इवन ही बनेगा, समझो है ना। हाँ, तो वो तो हमने वो फुलफिल हो रही है वो कंडीशन, क्योंकि स्टार लगा हुआ है ना, तो इसलिए वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। Write the regular expression for the language. L equal to A B power N W, where N is greater than equal to 3 and W belongs to A comma B. We have to write the regular expression for the language of A's and B's, where the string start with an A, then B power N, then followed by W, where W is belongs to A comma B whole star, and N पे condition ये है कि N should be greater than equal to 3. सर b की पावर जो है एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। B की पावर जी एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ये कह रहे हैं ना? एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। हेलो जी, क्या बात सिंपल है? तो जी सर बताया तो है। मेरे ख्याल से है इसका पहला आएगा b के ऊपर पावर 3, b के ऊपर पावर 3, यस, और ब्रैकेट में a प्लस b के ऊपर
होल प्लस कर दें तो शायद बन जाए। मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं आप? सर स्टेरिक की जगह प्लस कह रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन में भी प्लस ही लगा हुआ है ना। नहीं, प्लस नहीं है, स्टार लगा हुआ है। अच्छा, स्टार लगा हुआ है, ठीक। ये सही है या गलत है? बाकी से पूछो। सर 3 consecutive B's साथ आना जरूरी है? 3 B's साथ आ जाए, लेकिन उसमें लिखा है उसने एटलीस्ट 3 हो, एट मोस्ट तो जितने भी हो। तो यहाँ तो सिर्फ 3 B's के बाद आ ही नहीं रहा। मेरे ख्याल एक बी ब्रैकेट के ऊपर स्टार है। सर तो सर मेरा ख्याल है कि ए जो है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम आएगा स्टार्ट में। जी सर, बी सर फिर और अगर मदी चाहिए हो तो फिर हो जाए शायद। जी अब सही, ठीक। ए बी क्यूब बी स्टार ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्टार। वहां लिखा था ना ए बी टू द पावर n where n is greater than equal to 3. Expression for the language. जी सर दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अच्छा चलिए, जब तक हो रहा है कंटिन्यू रखें। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। L equal to W belongs where n अब आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है। अभी अगर कुछ बोला था तो वो अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। L equal to W belongs to A, B, यानी